جی تو ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ہم نے اپنے چینل علمستان ود منیر کی پچھلی قسط میں آپ کو بتایا تھا کہ کاردشف اسکیل کے مطابق کسی بھی تہذیب کی ترقی کا راز اس کے توانائی کو استعمال کرنے اور اس پر قابو پانے کی صلاحیت میں پوشیدہ ہے۔ لیکن کاردشف اسکیل اپنی جگہ ایک دلچسپ کانسیپٹ تو ضرور ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ بنیادی مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی تہذیب کے لیے ٹائپ 1 سے ٹائپ 2 کی طرف کا جو سفر ہے وہ محض مشکل ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن چیلنج ہے۔ سوچئے ایک ایسا میگا سٹرکچر بنانا جو پورے سورج کی روشنی کو جمع کر سکے، اس کے لیے کتنی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی، وسائل اور انجینئرنگ کی مہارت درکار ہو، جو کسی بھی ابتدائی تہذیب کی پہنچ سے باہر ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ٹائپ 1 سے ٹائپ 2 تک کا قدم انسانی ترقی کے راستے میں سب سے بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی تہذیب واقعی میں ٹائپ 2 یا ٹائپ 3 سیویلائزیشن بن جائے اور اس کے کنٹرول میں اتنی ایکسیسو توانائی ہو تو اس کا ہیٹ سگنیچر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اس تہذیب کے ماحول کو بگاڑ سکے اور اس کی تباہی کا باعث بن سکے۔ تیسرا مسئلہ نقطہ نظر کا ہے۔ اگر ہم ترقی کا پیمانہ صرف زیادہ سے زیادہ توانائی پر قبضہ قرار دیں تو ہماری توجہ خود بخود ستاروں، کہکشاؤں اور میگا سٹرکچرز تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا آغاز ہم چند بنیادی سوالات سے کرتے ہیں۔ کیا ترقی کا اصل پیمانہ واقعی ہی میں زیادہ توانائی پر قبضہ ہے، یا کم سے کم توانائی میں مادے پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول حاصل کرنا ہے؟ کیا کائنات میں ایڈوانسڈ سیویلائزیشنز اپنے ٹیکنو سگنیچر سے ہی پہچانی جا سکتی ہیں؟ کیا وہ کبھی اتنی خاموش ہو سکتی ہیں کہ خود کو مکمل طور پر چھپا لیں؟ اور اگر ہم اپنی نگاہ کو مائکروسکوپک سٹرکچرز بلکہ پلینکس لینتھ کی طرف موڑیں اور اس کائنات کی حقیقت اور فطرت کو سمجھنا چاہیں تو کیا کاردشف اسکیل ایک درست پیمانہ ہے؟ آئیے آپ کو ایک تمثیلی منظر دکھاتے ہیں۔ یہ سال 4025 ہے۔ پلانٹ پی کی سینٹرل آبزرویٹری میں ایلین سائنٹسٹ زلک اینٹی کاردشف اسکیل، جس کو بیروز مائکرو ماسٹری اسکیل بھی کہا جاتا ہے، اس پر زمین کی ترقی کا سکور ناپ رہا ہے۔ وہ شور نہیں ڈھونڈ رہا، وہ خاموشی تلاش کر رہا ہے۔ اس کی ہولوگرافک لینس زمین پر فوکسڈ ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سہارا ڈیزرٹ میں بچھے سولر پینل سورج سے آنے والے ایک بھی فوٹون کو ضائع نہیں ہونے دے رہے۔ سمندر کی تہہ میں بچھائی گئی کمیونیکیشن کیبلز ڈیٹا کو بغیر ڈسیپیشن اور ڈکے کے برق رفتاری سے منتقل کر رہے ہیں۔ شہروں کے اوپر ڈرونز بغیر شور کیے اڑ رہے ہیں۔ ایمیزون کے جنگلات میں قائم ڈوم نما ریسرچ سینٹرز میں پودوں کا ڈی این اے دوبارہ لکھا جا رہا ہے۔ خلا میں سٹار لنک کے ہزاروں سیٹلائٹ ہائی سپیڈ، لو لیٹنسی، براڈ بینڈ انٹرنیٹ رما رکھے ہیں، اور ساحل سمندر پر ایک چھوٹا سا کمرہ جہاں فیوژن کا ننھا سورج جل رہا ہے، مگر اس کے گرد ریڈیو ایکٹیویٹی کے کوئی آثار نہیں۔ ذل کی سانس رک جاتی ہے۔ وہ آہستہ سے کہتا ہے، یہ توانائی ضائع کرنا بھول چکے ہیں، یہ مالیکیولز کو حکم دینا سیکھ رہے ہیں۔ یہ کاردشف کے ساتھ ساتھ بیروز مائکرو ماسٹری اسکیل کی طرف بھی ترقی کا سفر جاری رکھے ہوئے۔ وہ فوراً اپنا لینس بند کرتا ہے اور کونسل ہال کی طرف لپکتا ہے۔ وہاں پر موجود تمام سائنسدان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ذل اعلان کرتا ہے کہ زمین اب شور نہیں کر رہی، وہ خاموش ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں بیروز مائکرو ماسٹری اسکیل یوز کرنا پڑے گی کہ ہم اس کی ترقی کو جج کر سکیں۔ بوڑھا سائنسدان ذل کی یہ بات سننے کے بعد دھیمے لہجے میں بولتا ہے، کیونکہ اس اسکیل میں ترقی کا سفر بڑے ڈھانچوں سے نہیں بلکہ پلینکس لینتھ تک رسائی حاصل کرنے میں پوشیدہ ہے، جہاں پر ایک تہذیب مادے اور معلومات پر انتہائی کم توانائی کے ساتھ مکمل کنٹرول حاصل کر لیتی ہے۔ جتنی زیادہ ترقی اتنا ہی کم شور،
उतनी ही गहरी खामोशी। तो चलिए नाजरीन, अब हम आपको बैरोज माइक्रोमास्टर स्केल की डिटेल्स बताते हैं। अगर इंसानी तहजीब तरक्की करते हुए B0 लेवल पर पहुंच जाए तो इंसानी तहजीब मादे को उस स्केल पर कंट्रोल करने की काबिलियत हासिल कर लेती है जो उसके हाथों के लिए मानूस है, यानी उसके गिरदोनवा में मौजूद बिल्डिंग, मशीनें, इंफ्रास्ट्रक्चर, मटीरियल। और इस दर्जे पर सब कुछ रवायती इंजीनियरिंग के तहत हो रहा होगा। बड़े स्ट्रक्चर्स बनाना, जोग्राफियाई वसाइल को इस्तेमाल करना, मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस को कंट्रोल करना और क्लासिकल टूल्स का इस्तेमाल। इस स्केल पर मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल प्रोसेसेस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जा चुका है। जी तो नाज़रीन, इसी स्केल के ऊपर इंसानी तहजीब तरक्की करते हुए B1 लेवल अचीव कर ले तो वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स को पढ़ने, दोबारा लिखने और प्रोग्राम करने की काबिलियत हासिल कर लेगी। ये तहजीब जिंदगी को टिश्यू, सेल्स और जेनेटिक कोड की सतह पर मैनिपुलेट करने की काबिलियत हासिल कर चुकी होगी। उसकी सलाहियतों में जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, डायरेक्टेड एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल ऑगमेंटेशन और प्रिसीजन मेडिसिन शामिल होंगे। वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स डिजाइन कर सकती होगी जिसके फंक्शंस बड़े महदूद हों। ऐसी तहजीब के लिए ज़राअत, तिब और बायोटेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर प्रोग्रामेबल डोमेन्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर कोई तहजीब तरक्की करते हुए B2 लेवल पर पहुंच जाती है तो वो तहजीब मैटर को मॉलिक्यूलर स्केल पर इंजीनियर कर सकती होगी। वो कस्टम मॉलिक्यूल्स डिजाइन कर सकेगी, मॉलिक्यूलर मशीन्स बना सकती होगी और नए मटेरियल्स को एटॉमिक प्रिसीजन के साथ असेंबल कर सकती होगी। इस लेवल पर एडवांस्ड नैनो टेक्नोलॉजी, सेल्फ असेंबलिंग स्ट्रक्चर्स, नैनो स्केल रोबोटिक्स और मॉलिक्यूलर लेवल मैन्युफैक्चरिंग शामिल होंगे। ये तहजीब अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स, प्रोग्रामेबल फार्मास्यूटिकल्स, टारगेटेड कैटालिस्ट और एनर्जी सिस्टम्स बनाने की सलाहियत हासिल कर चुकी होगी। यहाँ केमिस्ट्री एक तरह की इंजीनियरिंग बन जाएगी। इसी तरह एक तहजीब तरक्की करते हुए बैरोज माइक्रोमास्टर स्केल के ऊपर B3 लेवल पर पहुंच जाए तो वो इंफरादी एटम्स को पोजीशन, रीअरेंज और मैनिपुलेट करने की काबिलियत हासिल कर लेगी। वो एटॉमिक प्लेसमेंट के साथ साथ डिजाइनर स्ट्रक्चर्स और एटॉमिक लेवल सर्किट्स बनाने की काबिलियत भी हासिल कर चुकी होगी और ऐसे एग्जॉटिक मैटर फेजेस तश्कील देती होगी जो आम तौर पर मुमकिन नहीं है। क्वांटम डिवाइसेस आम टेक्नोलॉजी बन चुके होंगे क्योंकि क्लासिकल और क्वांटम स्टेट्स के दरमियान खलीज मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हो। कंप्यूटिंग, सेंसिंग और एनर्जी सिस्टम बेमिसाल प्रिसीजन के साथ काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए एक तहजीब अगर B4 लेवल पर पहुंच जाए तो वो मैटर को एटॉमिक न्यूक्लियस के स्केल पर मैनिपुलेट कर सकेगी। ये न्यूक्लियस स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकेगी, नए आइसोटोप्स बना सकेगी, स्ट्रॉन्ग और वीक इंटरेक्शंस को कंट्रोल कर सकेगी। उसकी कैपेबिलिटीज में क्लीन न्यूक्लियर फ्यूजन, कस्टम न्यूक्लियर फ्यूल्स, एडजस्टेबल रेडियो एक्टिव डिके और बहुत ज्यादा ताकत वाले कंपैक्ट एनर्जी सोर्सेज शामिल होंगे। ये न्यूट्रॉन रिच मटेरियल्स या डिजाइनर न्यूक्लियर लैटिसेस भी बना सकेगी और एनर्जी प्रोपल्शन और हथियारों की ताकत इस स्केल पर ड्रामाई हद तक बढ़ जाएगी। इसी तरह बैरोज माइक्रोमास्टर स्केल की मिराज वो मयार होगा जब एक तहजीब क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, बोसॉन्स और क्वांटम फील्ड्स जो कि मादे की बुनियाद बनते हैं सबको कंट्रोल कर सकेगा। ये तहजीब फंडामेंटल पार्टिकल्स के इंटरेक्शंस को इंजीनियर करेगी, वैक्यूम स्टेट्स को कंट्रोल करेगी और ऐसे मैटर बनाएगी जो कुदरती दुनिया में मौजूद है। उनकी टेक्नोलॉजी में फील्ड प्रोग्रामेबल मैटर, एक्सोटिक पार्टिकल्स, हाई एनर्जी कंप्यूटिंग, क्वांटम फील्ड इंजीनियरिंग और एडवांस्ड एंटी मैटर सिस्टम्स शामिल होंगे। ये एक ऐसा मुकाम होगा जहां फिजिक्स एक मुकम्मल प्रोग्रामेबल सबस्ट्रेट बन जाए। तो आइए नाजरीन, अब हम ये जांचते हैं कि बैरोज माइक्रोमास्टर स्केल के ऊपर इंसानी तहजीब किस मुकाम पर खड़ी है। आज की इंसानी तहजीब B1 और
इब्तदाई B2 सिविलाइजेशन के दरमियान कहीं पे मौजूद। चंद इब्तदाई इशारे B4 लेवल की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं, मगर असल मास्टरी अभी बहुत दूर है। हम वाज़े तौर पर B1 के अहल हैं, जैसे हम जीनोम्स को रीड और एडिट कर सकते हैं, हम फसलों को इंजीनियर कर सकते हैं, वैक्सीन्स बनाने की काबिलियत हासिल कर चुके हैं, सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करते हैं। हम B2 की जानब बढ़ रहे हैं, एडवांस्ड केमिस्ट्री, नैनो मटेरियल्स, मॉलिक्यूलर डिज़ाइन और इब्तदाई नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए। मगर कंट्रोल अभी प्रोबेबिलिस्टिक है, मुकम्मल प्रोग्रामेबल नहीं है। हमारी रिसर्च लैब्स में B3 लेवल तक पहुंचने की भी कुछ झलकियां हैं, जैसे सिंगल एटम्स को स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से मूव करवाना या एटॉमिक प्रिसीजन सर्फेस बनाना। मगर ये सारा अमल बहुत सुस्त, महंगा और अनस्केलेबल है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स हमें B4 की तरफ लेके जा रहे हैं, मगर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग अभी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। इंसानियत मजमूई तौर पर एक इब्तदाई माइक्रोमास्टरी तहजीब है, जो बायोलॉजी में बाशऊर, मॉलिक्यूलर लेवल पर बुलंद ख्वाहिशात रखने वाली और एटॉमिक स्केल पर बहुत मुतजस्सिस। मगर वो मुकाम जहाँ पर न्यूक्लियस, क्वांटम फील्ड और स्पेस टाइम फैब्रिक तक को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सके, प्रोग्रामेबल बनाया जा सके, अभी बहुत दूर है। तो नाज़रीन, आइए अब हम बैरोज माइक्रोमास्टरी स्केल के तनाजुर में ग्रेट फिल्टर का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रोमास्टरी स्केल के मुताबिक ग्रेट फिल्टर शायद मेगा स्ट्रक्चर्स बनाने या सितारों की तवानाई पर कब्जा करने में नहीं छुपा, बल्कि मॉलिक्यूल्स, एटम्स और न्यूक्लियस जैसे डेलिकेट माइक्रो वर्ल्ड पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने में कोशिश है। B1 और B2 तक पहुंचने वाली तहजीब को ये सीखना पड़ता है कि जेनेटिक एडिटिंग को इस तरह इस्तेमाल करे कि वो खुद को मिटा ना बैठे, मॉलिक्यूल्स को इस तरह इंजीनियर करे कि कोई रनअवे केमिस्ट्री पैदा ना हो जाए, और एटम्स को इस अंदाज में कंट्रोल करे कि मादे की बुनियादें गैर मुस्तहकम ना हो जाए। B3 और B4 पर खतरात और भी कई गुना बढ़ जाते हैं। एटॉमिक प्रिसीजन इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर मैनिपुलेशन और एनर्जी डेंस सिस्टम्स बेपनाह ताकत देते हैं, मगर एक छोटी सी गलती माहौल, मईशत या पूरी तहजीब को नाकाबिले वापसी तबाही के दहाने पर खड़ा कर सकती है। तो बैरोज फ्रेमवर्क में ग्रेट फिल्टर शायद वो हकीकत है कि जब बहुत सारी तहजीबें इस कायनात में मैक्रो स्केल से स्पेस टाइम फैब्रिक की तरफ बढ़ रही थीं, तो उन्होंने रास्ते में अपने आप को किसी भी गलती की वजह से तबाह कर डाला। तो अगर हम आज के एपिसोड को पोएटिक और मिस्टिक अंदाज में समझना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि कायनात के सारे भेद वुसअतों में छुपे हुए नहीं, बल्कि कई बार वो ऐसे खामोश जर्रों में मौजूद हो सकते हैं कि जिनकी साख्त को समझने से पूरे ज़मानों मकान की गुत्थियां सुलझ जाएं। एटम की खामोशी में वो राज छुपे हो सकते हैं जो हमें कहकशाओं के शोर में न मिले। शायद तरक्की ये नहीं कि हम सितारों को पकड़ लें, बल्कि ये कि हम एक भी मॉलिक्यूल को ज़ाया ना हो। तो इल्मिस्तान विद मुनीर के मुझे जैसा साथी, इस एपिसोड के इख्तिताम पर हम आपके लिए दो बुनियादी सवालात लाए हैं। पहला सवाल ये है कि इंसानी तहजीब बैरोज माइक्रोमास्टरी स्केल के ऊपर तरक्की करने के लिए ज़हनी और अखलाकी तौर पर तैयार है। दूसरा ये कि जब इंसानी तहजीब स्केल के ऊपर इंतहाई तरक्की याफ्ता हो चुकी होगी, तो क्या वो अपने टेक्नो सिग्नेचर्स अमिट करेगी या खुद को छुपा लेगी, ताकि कायनात में कोई और तहजीब उसे ढूंढ ना पाए। कमेंट्स में हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, अगली एपिसोड में हम आपको किसी भी तहजीब की तरक्की को मापने का एक और पैमाना, जिसमें तवानाई की बजाय डाटा के ऊपर फोकस किया जाता है, उसकी डिटेल्स बताएंगे। इंतज़ार कीजिए।